WebKey is an intelligent mobile digital infrastructure device that aggregates DPI and trusted hardware and blockchain network, user identity and Web3 mass apps, AI smart services, Web3 store, and business project launcher. Optimizing Android OS and smart devices from the ground up. Build a quick entry into the Web3 world and the best carrier for tens of thousands of high-quality Web3 projects and tools. WebKey will successively release WebKey 1, WebKey Pro, and WebKey Ultra devices to the market, with a focus on sales to Africa, Southeast Asia, South America, and third world countries. By owning WebKey, users will be given with built-in Eco Token rewards, airdrop token rewards for premium crypto assets from Anubi Foundation and its partners and token airdrops, and task rewards based on quality Web3 projects uploaded on the WebKey Eco platform. Users can also earn tokens for browsing ads, participating in community building, reading news, and interacting in the marketplace. We have also simplified the complex on-chain asset acquisition, trading, and other modules to meet the needs of ordinary users, so that these users can realize one-click acquisition and sale, minimizing the difficulty of user participation. Users are also given the best path to learning and engaging with Web3 through a variety of built-in Web3 applications and information tools. The built-in AI Friend system provides users with the simplest access to information and accurate investment advice analysis module, enhancing the user experience of participating in Web3 and crypto asset trading. For the Web3 App Store developed by WebKey platform, there will be no middlemen or charges on developers' profit, and the users can manage the community by owning the key. The App Store serves as a launcher while promoting the development of dApps, bringing an excellent stage for the development of high-quality projects. Tens of thousands of blockchain games, social apps, wallets, exchanges, and other apps can be downloaded at will from the Web3 App Store, based on the underlying WTE security protocol. WebKey protects users' sensitive data, code, and assets. With hardware upgraded security zones, WTEE provides a completely isolated operating environment for systems like Android. It protects the code and data running in it, as well as on-chain interaction data against external attacks. By virtue of RM Trust Zone, Intel SGX, RISC VPMP, and other technologies. Trusted boot and remote attestation, running isolation, end-to-end encryption, and privileged device signature, and persistent data encryption and decryption are implemented simultaneously. Each WebKey is also an independent hardware wallet. WebKey is realized through biometric verification, dynamic loading Linux policies, backdoor programs and development tools, key management for the downward compatibility of the powerful ecology and trend of Web 3.0 with the mobile internet. It allows billions of users to easily participate in the construction of Web 3, truly changing the basic operating principle. नमस्कार दोस्तों, मैं रवि वर्मा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है WebKey और आज हमारे बीच में एक शानदार लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी और मेरे मेंटर जो है आज इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी देंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, प्लस में हमारा जो यूनिक प्रोडक्ट है उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे वो आपको यूनिक पॉइंट्स भी आपसे डिस्कस करेंगे जो कि आपको आगे चल के बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो मैं एक ये भी चाहूंगा कि जिन आपके जो फ्रेंड्स हैं, नियर एंड डियर हैं, आप उनको भी इनवाइट करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सके और उनकी भी लाइफ चेंज हो सके। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, एक डायरी और पेन भी लेके बैठे क्योंकि आज जो ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर, मेरे मेंटर जो हैं वो आपको कुछ यूनिक पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जिससे वो आप राइट डाउन कर सके, जिससे आपकी
लाइफ चेंज हो सके। और दूसरा मैं ये चाहूंगा जिन साथियों ने अपना जो है नेम नहीं मेंशन करा वो नेम मेंशन करें, ताकि हमारे सीनियर या मेरे मेंटर अगर इनवाइट करते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो आपके नाम से लेके आपको इनवाइट कर सकें। और मैं दूसरा ये बुलाने से पहले ये मैं चाहूंगा कि आप ये 1 से 2 मिनट के अंदर कर लें। तो चलिए साथियों, अब मैं बुलाना चाहूंगा एक वार्म वेलकम के साथ नवीन सर को। नवीन सर, ओवर टू यू। Thank you so much, Ravi ji, for inviting me. वेलकम सर। Uh, तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवीन कुमार और आप सभी का तहे दिल से आज के सेशन में स्वागत है। जैसा कि रवि जी ने कहा, एक बहुत ही लाइफ शानदार और एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट जिसकी आज चर्चा यहाँ होने वाली है। तो जो भी साथी आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी साथियों, आज अपने 35 से 40 मिनट फुल डेडिकेशन के साथ यहाँ पे आज दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एहसास आने वाला है कि एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी से आप रूबरू हुए हैं, लेकिन फिजिकली और मेंटली आपको अगले 35 से 40 मिनट यहाँ पे रहना होगा इस सेशन के अंदर। तो साथियों, ये जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम आप देख रहे हैं वेब की, ये एक साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है। क्योंकि प्रोजेक्ट हमने बहुत सारे देखे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब भी करी होंगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कितने समय के लिए रही, कितना बेनिफिट हमें उससे मिला, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आ जाती है जो बिल्कुल हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। वो है दोस्तों, आज मैं बात करूं तो वेब की। आज मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ आपसे कह रहा हूं कि एक बहुत शानदार है, लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है वेब की। तो इसके पीछे एक वजह है दोस्तों। वो वजह है इस कॉन्सेप्ट की टेक्नोलॉजी जिस पे आज वेब की काम कर रहा है। तो दोस्तों, हम इसकी टेक्नोलॉजी को समझेंगे। पहले बैकबोन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट के पीछे वर्किंग क्या है, बैकबोन क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इमारत तो खड़ी हो सकती है, लेकिन अगर उसका नींव मजबूत नहीं है तो वो इमारत कभी भी ढह सकती है। अगर उसका बेस मजबूत है तो वो इमारत काफी लंबे समय तक हमें देखने को मिलेगी, और वह अगर जिस व्यक्ति की है तो उसके लिए एक वैल्यूएबल एसेट क्रिएट हो जाती है दोस्तों। तो आज वेब की दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनकर मार्केट में उभरा है जिसे लोग अपनाकर अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। और आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो दोस्तों, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है दोस्तों वेब 3 टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज वेब 3 का जमाना शुरू हो चुका है और अगले कुछ सालों में हम सिर्फ वेब 3 सुनने वाले हैं। तो आज जो साथी पहली बार सुन रहे हैं वेब 3 को, तो दोस्तों मैंने भी कभी पहली बार सुना था कि वेब 3 एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग दुनिया होगी, लेकिन मैं इसको जानता नहीं था कुछ महीनों पहले तक। लेकिन आज जब मैं वेब 3 को समझ चुका हूं, तो आज मैं लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देता हूं कि वेब 3 को आज हम समझ लें। क्योंकि आज हमने वेब 3 को समझ लिया तो दोस्तों हम उन लोगों से बहुत आगे निकलने वाले हैं। क्योंकि इसको जो जानने वाले लोग हैं, जिसको हम बोलते हैं मैंगो पीपल दोस्तों, वो इसको अगले 5 से 10 साल में वेब 3 के बारे में वो जानना शुरू करेंगे। लेकिन हम बहुत लकी हैं कि आज हमें वेब 3 के बारे में समझने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ एक और टेक्नोलॉजी के बारे में हमें समझने का मौका मिलेगा, जिसका नाम है दोस्तों डीपिन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो कि हमारा एक मोबाइल फ़ोन है दोस्तों। इसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि ये मोबाइल फ़ोन क्यों यूनिक है, क्यों शानदार है। तो दोस्तों, वेब की क्या है पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, वेब 3 की दुनिया का एक रियल कॉन्सेप्ट है, और ये हमारी लाइफ को चेंज करने में पूरी तरह से सक्षम है। अब वेब 3 की दुनिया को समझकर हम वेब की पावर को समझ सकते हैं और वहां से अपने लिए एक इनकम जनरेशन तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वेब 3 को समझना होगा। तो इसके लिए मैं आपको
आपके लिए एक स्क्रीन शेयर करता हूं वेब 3 के लिए। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वेब 1, वेब 2, वेब 3, तो यहाँ पे मैं आपको वेब 3 समझाने वाला हूं सबसे पहले। तो दोस्तों, वेब 3 इंटरनेट की दुनिया की सबसे लेटेस्ट जनरेशन पे काम करेगा, वेब 3। और ये वेब 3 दोस्तों फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया होगी, यानी कि ब्लॉकचेन बेस्ड दुनिया होगी। अब डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम वेब 1 को समझते हैं, फिर हमें ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज अगर नहीं भी मालूम है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट नजर आने लग जाएंगे कि वेब 3, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई नई चीज आएगी तो पहले से तो बेटर ही आएगी, तभी दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। तो दोस्तों, इंटरनेट की सबसे पहली जनरेशन थी, वो थी वेब 1, जो कि आज से लगभग 35 ईयर्स बिफोर और बात करूं तो 1991 में इसको सार्वजनिक तौर पे लॉन्च किया गया था, यानी कि ये था इंटरनेट का शुरुआती दौर। अब दोस्तों, जब इंटरनेट धरती पे आया और शुरू हुआ, तो उस समय जब किसी को भी कोई फाइल या कोई कंटेंट भेजा जाता था, तो वो सिर्फ एज ए रीड ओनली फाइल काम करता था। यानी कि अगर हमने कोई कंटेंट किसी व्यक्ति को भेजा है इंटरनेट के माध्यम से, तो वो व्यक्ति सिर्फ उसको देख सकता था, या किसी व्यक्ति ने हम तक भेजा तो वो हम सिर्फ देख सकते थे, उसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते थे। अगर उसमें कोई त्रुटि भी है तो सिर्फ हम उसको देख ही सकते थे। लेकिन दोस्तों, ये दौर ज्यादा दिन नहीं टिका। 2004 में हम वेब 1 से निकल करके वेब 2 में आ चुके थे। अब फर्स्ट जनरेशन से हम सेकंड जनरेशन में आ गए। यहाँ पर इंटरनेट अपग्रेड हुआ और हमारे लिए कुछ बेनिफिट स्टार्ट हुए। तो यहाँ पर अब रीड ओनली फाइल नहीं बचा। यहाँ पर अगर कोई कंटेंट हमारे पास आया तो उसके अंदर हम बदलाव कर सकते थे। उसमें कोई एडिटिंग करना है या कुछ भी है, तो हमारे पास ये अथॉरिटी है। और दोस्तों, ये आज भी है, क्योंकि हम 2025 में हैं आज, और अभी भी हम वेब 2 में ही सरवाइव कर रहे हैं और वेब 2 को ही हम पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों, वेब 2 को हम काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं और इतने इसके हम यूज टू हो गए हैं कि आज हम अपना नुकसान भी कर रहे हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कठिन काम को भी निरंतरता से कंटिन्यू किया जाए तो वो कठिन काम भी आसान लगने लग जाता है। तो उसी तरह से आज हम वेब 2 को यूज करते करते हमारे नुकसान हो रहे हैं, तो उसकी कोई हमें परवाह नहीं। बट इंटरनेट तो हमें चाहिए ही अपने फोन के अंदर, और हमें इंटरनेट चलाना है, फेसबुक भी चलाना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, गूगल भी चलाना है, क्रोम भी चलाना है, सब कुछ चलाना है। लेकिन लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, होने दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। दोस्तों, वेब 2 का अगर सबसे बड़ी कमी मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमारी पर्सनल डेटा सिक्योरिटी को लेकर है, सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि जो भी हम डेटा आज आपस में एक दूसरे को सेंड करते हैं, वो डेटा कहीं ना कहीं हमारा इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के पास जाता है, गूगल के पास जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे जो डेटा है हमारा दोस्तों, ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास जाता है, और सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास ही हमारा डेटा स्टोर हो जाता है, जहां पर हमारे डेटा पर नजर रखी जाती है। अब ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं दोस्तों, ये हमारे डेटा के माध्यम से मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे अर्निंग कर रही होती हैं। लेकिन आज हम काफी समय से वेब 2 को यूज कर रहे हैं, तो क्या एज ए यूजर हमें कोई बेनिफिट हुआ? तो जवाब यही आएगा कि हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इवन हमारा लॉस हुआ कि हमारा पर्सनल डेटा कहीं ना कहीं लीक हुआ, जिसके वजह से हमें काफी नुकसान उठाने पड़ते हैं आज। क्योंकि पर्सनल डेटा क्यों लीक होता है दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि आज हमारा डेटा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर कंप्लीटली अवेलेबल है। हमारे नाम से लेकर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इवन घर का एड्रेस तक भी सब कुछ पता है गूगल को। तो आप सोचिए कि हमारा डेटा क्या वो सिक्योर है? तो नहीं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कि दोस्तों, आज वेब 2 को हम पूरे दिन भी यूज करें, लेकिन ये हमें इनकम जनरेशन का कोई मॉडल रेडी करके देने वाला नहीं है, ना ही इसने अभी तक ऐसा किया है। अपने लिए तो इन्होंने इनकम बनाया, और आज इंटरनेट की दुनिया का लगभग 65 से 70% जो कब्जा है वो सिर्फ अकेले गूगल का है दोस्तों। एक सिंगल अथॉरिटी, जो कि एक ऑथराइज, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास है। तो दोस्तों सोचिए कि इतना बड़ा हिस्सा जब किसी एक अथॉरिटी के पास रहेगा, तो वो उसका कुछ भी यूज कर सकता है। लेकिन वेब 3 के अंदर दोस्तों,
ऐसा नहीं होने वाला है और ये हमें इनकम जनरेशन का एक मॉडल भी रेडी करके देने वाला है। तो वेब 3 में हम लोग एंटर कर चुके हैं दोस्तों, और वेब 3 को आज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, धीरे-धीरे वो अवेयर हो रहे हैं। वैसे वेब 3 की शुरुआत 2014 से ही हो चुकी थी, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप होने में कुछ समय लगता है। लेकिन अब ये बहुत तेजी के साथ मूवमेंट आ रहा है वेब 3 की तरफ, और 2030 से लेके 35 तक ये पूरी तरह से वेब 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ वेब 3 की, कि दोस्तों कभी भी वो व्यक्ति ज़्यादा प्रॉफिट ले पाते हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी को पहले समझ के उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बाद में तो इस्तेमाल करना एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन पहले समझ के हमने इस्तेमाल किया तो हम वेब 3 से बहुत अच्छी इनकम करेंगे। तो वेब 3 दोस्तों फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया होगी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट होगा कि दोस्तों ये ब्लॉकचेन बेस्ड पे काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा, और यहाँ पे संपूर्ण यूजर कंट्रोल होगा। ये सबसे बड़े बेनिफिट हैं दोस्तों वेब 3 के। तो अब यहाँ पे इनकम जनरेशन की मैंने बात करी है, तो कैसे होगी? तो वेब 2 में दोस्तों आज हम प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन यूज करें, वो एप्लीकेशन हमें एक्सेस देने से पहले हमसे हमारा पर्सनल डेटा जरूर पूछती है। उसके बिना उसने हमें एक्सेस ही नहीं देना है। मे बी हमसे नाम पूछ सकती है, मेल आईडी पूछ सकती है, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी। जब हम उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो एप्लीकेशन हमें एक्सेस देती है, क्योंकि उसको हमारे डेटा से कहीं ना कहीं पीछे इनकम जनरेट करनी है। अगर वेब 3 की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन अगर हम यूज करेंगे, वो हमसे पहली बात तो हमारा पर्सनल डेटा नहीं पूछेगी। अगर वो पूछती भी है तो उसको हमें इंस्टेंट इनकम देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो यहाँ पे हमें टोकन या कॉइन के फॉर्म में इमीडिएट इनकम आएगी। तो यहाँ पे सोचिए कि अगर हम दिन भर में 2, 4, 5, 10 एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन ने हमसे हमारा पर्सनल डेटा पूछा, तो हमें इंस्टेंट इनकम मिली, तो यानी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे संपूर्ण यूजर कंट्रोल हम हमारा होगा, तो हमारा डेटा भी कहीं लीक नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों वेब 3 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से वाकई हमें आने वाले समय में बहुत बड़े बेनिफिट होने वाले हैं, और हम इंटरनेट की दुनिया से बहुत अच्छी इनकम कर पाएंगे, जो कि आज नहीं कर पा रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कुछ अथॉरिटी ही इंटरनेट के माध्यम से पैसा जनरेट कर पा रही है। तो ये है वेब 3, जो कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। अब हम बात करेंगे डीपिन टेक्नोलॉजी की। दोस्तों जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि डीपिन लिखा हुआ है, ये क्या है दोस्तों? तो डीपिन टेक्नोलॉजी पे आज हमारा वेब की काम कर रहा है, और ये डीपिन टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, जो आने वाला एक फ्यूचर है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके एनालिस्ट जो हैं, जो इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो दिन रात रिसर्च करते हैं, जो इसके मार्केट सर्वे जो करते हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि अगले 3 साल के अंदर जो ये डिपिन टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करने वाली है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी की तो अभी शुरुआत है, शुरुआत मात्र है, और हम सब बहुत लकी हैं कि हमें शुरुआत में इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। आज हमारा वेब की कॉन्सेप्ट जो है वो डिपिन टेक्नोलॉजी पर बेस है दोस्तों। इसलिए इस डीपिन टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इनकम को तो देखते हैं, लेकिन उसका बैकएंड नहीं देखते हैं कि जहां से हमें इनकम आने वाली है, वो प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है, कब तक हमें इनकम दे पाएगा। तो दोस्तों अगले 3 साल के अंदर ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रूप लेने वाली है, और इसकी मार्केट वैल्यू ट्रिलियन डॉलर में पहुंच जाएगी। कहते हैं कि लगभग लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इसकी मार्केट अगले 3 साल में होने वाली है, जो कि है डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, जो कि डिसेंट्रलाइज का एक अपडेटेड एक एडवांस वर्जन है। तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी जितनी भी हैं, उनके ऊपर से डिपेंडेंसी को कम करना, डेटा को ज्यादा सिक्योर करना और ट्रांसपेरेंट करना, ये डिपिन का काम होगा। तो एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, और हमें आज या फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही करना चाहिए जो वेब 3 हो और डीपिन बेस्ड हो, क्योंकि ये दोनों ही टेक्नोलॉजी आज ग्रोइंग मोड में है, और आने वाले समय में एक इतिहास लिखेंगी दोस्तों ये टेक्नोलॉजी।
अब चलते हैं दोस्तों आगे, और स्क्रीन मेरी विजिबल होगी उम्मीद करता हूं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि अपना जो वेब पी कॉन्सेप्ट है वो डीपिन पे काम कर रहा है, वेब 3 पे काम कर रहा है। तो डीपिन का मतलब है एक फिजिकल प्रोडक्ट, और फिजिकल प्रोडक्ट दोस्तों जब एक बहुत ही यूनिक, डिमांड और हॉटफुल प्रोडक्ट हो तो दुनिया तो वहां पे आएगी ही आएगी, मूव करेगी ही करेगी उसकी तरफ। और इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब दोस्तों बात करूंगा वेब की टोकन एलोकेशन की, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ साथ एक बहुत ही यूनिक टोकन है जिसका नाम है डब्ल्यू की डाउ टोकन। दोस्तों ये बहुत ही वैल्यूबल टोकन है आज के समय में, क्योंकि आज सिस्टम को 9 महीने हो चुके हैं। जिस दिन आप ये सुन रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, 9 मंथ सक्सेसफुली ये कंप्लीट कर चुका है और अपनी वैल्यू को मार्केट में दर्शा चुका है, लोग देख चुके हैं। और ये आज बड़े बड़े एक्सचेंज भी कहते हैं कि वाकई डब्ल्यू की डाउ एक वैल्यूबल एसेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आज बाइनेंस भी इसके लिए बहुत कुछ कहता है। आप सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने आने वाला है कि ये टोकन कितना वैल्यूबल है और आने वाले समय में इसकी ग्रोथ कितने बड़े लेवल पे होने वाली है। क्योंकि बाइनेंस ने दोस्तों अपनी बहुत सारी स्टेटमेंट में इस टोकन की वैल्यू को बताया है। तो सिर्फ और सिर्फ आप गूगल पे जाएं, सर्च करें वेब की बाइनेंस, तो वहां पे जितनी भी बाइनेंस की स्टेटमेंट है इस टोकन को लेकर के, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों जो लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, जो ब्लॉकचेन को जानते हैं, वो बाइनेंस को भी जानते होंगे कि बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी का बेताज बादशाह है, जिसने सबसे कम समय में आज सबसे आगे दुनिया को पीछे कर दिया। आज वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस, नंबर 1 ब्लॉकचेन है जिसके पास, और दोस्तों नंबर 1 स्वैप भी है उसके पास। तो सब कुछ नंबर 1 है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। तो दोस्तों हम हमें एतबार करना होगा, जब इतना बड़ा एक्सचेंज सामने से आके बोल रहा है कि टोकन वैल्यूबल है, तो कहीं ना कहीं उसने कुछ इसको इसमें देखा होगा। और दोस्तों ये एक ऐसा दुनिया का टोकन है जो आज ड्यूअल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। इससे पहले दुनिया के किसी भी टोकन ने ड्यूअल मैकेनिज्म या ड्यूअल टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया। ये ड्यूअल मैकेनिज्म होता क्या है इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों आज तक जितने भी टोकन मार्केट में आए, तो वो या तो हमें डिसेंट्रलाइज पे देखने को मिले या किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे देखने को मिले। लेकिन ऐसा कोई टोकन अभी तक नहीं आया है, आप ध्यान कीजिए, कि जो डिसेंट्रलाइज पे भी काम कर रहा हो और सेंट्रलाइज पे भी काम कर रहा हो। नहीं मिला ऐसा कोई भी टोकन। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा टोकन होगा जो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज दोनों पे काम कर रहा होगा। इसलिए ये ड्यूअल टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म पे काम कर रहा है दोस्तों, जिसकी टोटल सप्लाई 210 मिलियन है। इसमें से 45% का जो हिस्सा होगा वो सेंट्रलाइज होगा और 55% का हिस्सा डिसेंट्रलाइज होगा। यहाँ पे सब कुछ डे 1 से फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, कि सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है कि कितना सेंट्रलाइज होगा, कितना डिसेंट्रलाइज होगा। आज हम डिसेंट्रलाइज मोड पे काम कर रहे हैं और डब्ल्यू की डाउ के नाम से है, ये डिसेंट्रलाइज पे लिस्टेड है। और आने वाले समय में ये हमें डब्ल्यू की के नाम से सेंट्रलाइज पे दिखाई देने वाला है, जो कि अभी ये सेंट्रलाइज पे लिस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट इन्वेंशन दोस्तों बहुत टफ होता है। ये फर्स्ट इन्वेंशन पहला इंप्लीमेंट चल रहा है, क्योंकि दोनों को ब्रिज करना, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज को आपस में कनेक्ट करना आसान काम नहीं है। लेकिन ये काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा और हमें ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी देखने को मिलेगा। और सबसे पहले हम जिसकी बात करते हैं कि बाइनेंस, वहीं पे हमें ये दिखेगा। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज दोनों तरफ किया जा रहा है दोस्तों, कि आज हम पहले से ही डिसेंट्रलाइज पे काम कर रहे हैं। और जितने भी यूजर आज तक आ चुके हैं डिसेंट्रलाइज मोड में, यानी कि आज मैं बात करूं तो 8.25 लाख से ज्यादा कम्युनिटी आज वर्ल्ड वाइड डिसेंट्रलाइज मोड पे काम कर रही है। तो दोस्तों ये जो 8.25 लाख की कम्युनिटी है, इनको आने वाले समय में बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इस टोकन के माध्यम से। आप पूछिए कैसे होगा। तो दोस्तों आज डिसेंट्रलाइज मोड में काम कर रहा है हम लोग, और आने वाले समय में जब ये सेंट्रलाइज पे लिस्ट होगा, तो ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है जो सिर्फ और सिर्फ टोकन को बाय करती है और सही समय का वेट करती है, उसके बाद वो सेल कर देती है। यानी कि
सेंट्रलाइज कम्युनिटी, जिनको किसी से मतलब नहीं है, टोकन गया एक्सचेंज पे, बाय किया और जैसी रेट बढ़ा सेल किया। अगर उस कम्युनिटी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि एक डब्ल्यू की डाउ टोकन है जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन है, तो उस कम्युनिटी को इधर मूव कराना। अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों 5 से 10% की कम्युनिटी भी ट्रेडिशनल की मूव होती है डब्ल्यू की डाउ की तरफ, तो जो आज इसमें एसोसिएटेड पीपल हैं, उनको कितना बड़ा इसका प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आज डब्ल्यू की डाउ है, जिसे हम इजीली स्वैप कर पाते हैं अपने डेप पे। आने वाले समय में हम डब्ल्यू की के साथ भी उसको स्वैप कर पाएंगे और एक्सचेंज पे जाके सेलेक्ट कर पाएंगे, तो ये बेनिफिट मिलेंगे। अब हम इसका टोकन एलोकेशन जान लेते हैं, टोकनॉमिक्स जान लेते हैं। तो 10% दोस्तों इसके जो है वो है इनिशियल टीम के लिए, इन्हें फाउंडर्स के लिए। 25% का हिस्सा है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के लिए और 10% इकोसिस्टम यानी कि एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए। ये 45% हिस्सा है जो कि सेंट्रलाइज है और सबसे बड़ा हिस्सा जो 55% का है 115.5 मिलियन, ये दोस्तों होगा डिसेंट्रलाइज मोड के लिए, यानी कि फोन के लिए, हमारे मिंटिंग के लिए एयर ड्रॉप इसी 55% से होगा। अब हम इसको जरा एक्सप्लेनेशन रूप में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 10% हिस्सा सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा और बात करूं तो बाइनेंस और बाकी के जो भी टॉप 9 एक्सचेंज है वहां पर। जिस दिन भी ये बाइनेंस पे लिस्ट हुआ उसके 6 महीने के बाद से जो अगला 10% हिस्सा है जो फाउंडर्स के लिए रखा गया है वो रिलीज होना स्टार्ट होगा, लेकिन ये कंप्लीटली एक बार में उनको नहीं मिलेगा। 3 साल का समय लगेगा ये 10% हिस्सा उन तक पहुंचने में। तो अभी तो ये बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि अभी तो बहुत समय है कि ये 10% हिस्सा उन तक रिलीज होगा और पहुंचेगा। तो 3.5 साल से वक्त 3.5 साल से ज्यादा का समय तो अभी भी हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अभी भी बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ है। दूसरा दोस्तों 25% जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के लिए रखा गया है वो इसलिए कि अगर इनके फंडिंग टारगेट मीट नहीं हुए तो बाकी जितने भी टोकन्स बचे होंगे उन सभी को बर्न कर दिया जाएगा। तो ये होगा 45% हिस्सा। अब दोस्तों 55% हिस्सा, स्पेशली आज जितने भी यूजर सुन रहे हैं मुझे, तो हमें फोकस सिर्फ 55 पे रखना है, क्योंकि हमें अपनी जो हिस्सेदारी है इसी 55% में से ही बुक करनी है और जितना बड़ा प्रॉफिट जनरेट करना है हमें वो 55% से हिस्सेदारी लेकर ही करना है। तो ये 55% हम सभी के लिए है। तो दोस्तों इसी में से हमारे फोन के एयर ड्रॉप, फोन और मिंट होंगे टोकन, ये सभी के सभी 55%, यानी कि लिक्विडिटी बेस पे ये टोकन मिंट होंगे, जो कि पहले से प्री जनरेटेड ये टोकन नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर कोई साथी सोच रहा हो ये टोकन सारे बने हुए हैं, कभी भी पंप और डंप हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये मिंट होंगे, वो भी लिक्विडिटी बेस पे होंगे। तो कैसे मिंट होंगे मैं आगे आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। अब दोस्तों ये जो स्लाइड है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं, एक मोबाइल फोन बना हुआ है, तो ये एक अद्भुत मोबाइल है, एक शानदार मोबाइल है और जितनी तारीफ करूं इस मोबाइल की उतनी ही कम है। इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो साथी पहली बार सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि ऐसा क्या खास बात है इस मोबाइल के अंदर, और शायद मैं बताऊंगा तो शायद फर्स्ट टाइम में तो लोगों को ये बिलीफ ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये फोन जो है ये वेब 3 मोबाइल फोन है और आज हम जो यूज कर रहे हैं वो वेब 2 मोबाइल फोन है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही क्रिएट हो गया कि ये बहुत ही अपग्रेडेड फोन है जो कि वेब 3 यानी कि ब्लॉकचेन बेस्ड फोन है। तो हमारे फोन, इस फोन में दोस्तों सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि आज हम जो भी फोन यूज कर रहे हैं वो फोन हमें इनकम करके नहीं देता है। हम फोन कितना भी अच्छा ले लें, लेकिन वो फोन कभी ना कभी डिक्रीजिंग मोड में आते आते हाफ रेट या हाफ से भी हाफ रेट का हो जाएगा, वैल्यू उसकी गिर जाएगी, लेकिन वो हमें इनकम नहीं देगा। लेकिन दोस्तों ये फोन जिस दिन भी हम बाय करेंगे उस दिन ये फोन हमारे लिए उल्टा काम करेगा, यानी कि एप्रिसिएशन मोड में काम करने वाला है, हमें इनकम करके देने वाला है ये फोन। ये सबसे मेजर डिफरेंस होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आज तक हम जब से फोन यूज कर रहे हैं एंड्रॉयड, कभी भी इनकम नहीं आई। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि दुनिया का पहला जो वेब 3 फोन बना दोस्तों वो बनाया सोलाना ने, सोलाना ब्लॉकचेन, और उसने उस फोन का नाम रखा सोलाना सागा। ये आप गूगल कर सकते हैं, ये पिछले साल की बात है। और उस फोन की जो कॉस्ट रखी $699 रखी, और $699 का जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग में खरीदा और उनको 1 साल कंप्लीट होते होते दोस्तों लगभग $5000 की इनकम हुई।
अब ये $5000 की इनकम कैसे हुई इस फोन के माध्यम से? तो दोस्तों एयर ड्रॉप के तौर पे हुई। सोलाना ने वहां पे एयर ड्रॉप रिलीज किए थे उस फोन के अंदर, और जिसकी कॉस्ट बढ़कर 1 साल के अंदर $5000 में कन्वर्ट हो गई। अब ये फोन जो सोलाना का था दोस्तों, ये सिंगल ब्लॉकचेन सपोर्ट फोन था, यानी कि इसमें किसी और ब्लॉकचेन के एयर ड्रॉप नहीं रिलीज किए जा सकते थे इस पे, सिर्फ सिंगल सोलाना के एयर ड्रॉप ही उस पे जा सकते थे। उसके बावजूद भी वहां पे $5000 की इनकम हुई। तो ये बताने का मकसद मेरा ये था कि दोस्तों ये पहला फोन ऐसा नहीं है वेब3 जो इनकम हमें देने वाला है, लेकिन दुनिया का जो दूसरा फोन बना वेब3 वो वेबकी ने बनाया, और इसका नाम रखा दोस्तों वेबकी कूपर 3। अब इसमें खास बात क्या रही दोस्तों कि ये जो इन्वेंशन हुआ वेबकी के माध्यम से, ये दुनिया का अब तक का सबसे सुपर सबसे एडवांस वर्जन है, जो कि मल्टी ब्लॉकचेन सपोर्ट है। यहाँ पे सभी ब्लॉकचेन सपोर्ट करेंगी इस फोन के अंदर। जब एक सिंगल ब्लॉकचेन के साथ $5000 की इनकम हो सकती है, तो यहाँ पे तो मल्टी ब्लॉकचेन है, तो यहाँ पे कितनी इनकम हो सकती है, बस इसका एक कंपैरिजन करने के लिए मैंने आपको सोलाना का एग्जांपल दिया। साथ ही साथ दोस्तों आज वेबकी के साथ 30 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों का टाई अप हो चुका है, कोलैबोरेशन हो चुका है कि जो भी वेबकी फोन बाय करेगा उसको इन 30 बड़े बड़े ब्रांड्स के माध्यम से भी एयर ड्रॉप रिलीज किए जाएंगे, यानी कि इन एयर ड्रॉप उनको अब दो तरह से आएंगे। ब्लॉकचेन से तो आएंगे ही आएंगे, साथ साथ इन 30 बड़े बड़े ब्रांड से भी आएंगे। तो दोस्तों ये फोन हमें बहुत इनकम देने वाला है, और जो भी इस फोन को यूज करेगा वो इसके बेनिफिट भी बता सकता है। क्योंकि आज अगर हमारे घर में 2 से 3 फोन हैं, हर घर में लगभग आज 2-3 फोन हैं, तो अगर एक फोन में मैं कहता हूं दोस्तों 1 लाख भी इनकम आती तो शायद आज हम फोन के माध्यम से भी बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन ये जो वेबकी का फोन दोस्तों, अगर घर में 2 फोन 3 फोन है, तो आने वाले समय में समझ लीजिए कि कितनी बड़ी इनकम सिर्फ फोन के माध्यम से होने वाली है। फोन के स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो वो हम स्लाइड पे देख सकते हैं कि इसका प्रोसेसर क्या है, इसका कैमरा क्या है, इसकी रैम क्या है, इसका रोम क्या है, हार्ड डिस्क, सब कुछ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेसिकली ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम टैब सिस्टम में जाकर भी इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। तो इस फ़ोन के माध्यम से दोस्तों हमें 2 तरह से इनकम होगी। सबसे पहले तो इस फ़ोन को हम बाय करेंगे तो एयर ड्रॉप के माध्यम से तो हमें इनकम होगी ही होगी। साथ ही साथ जब इस फ़ोन को हम कम्युनिटी में किसी को सेल करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे इस फोन के बारे में, तो वहां से हमें 10% का प्रॉफिट जनरेट होगा एज ए डायरेक्ट इनकम। अब बात आती है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो दोस्तों इसकी भी कॉस्ट $699 होगी, जो कि सोलाना ने अपने फोन की रखी थी। तो $699 कॉस्ट है, तो 10% हमें उससे डायरेक्ट कमीशन मिलेगा, सेकंड लेवल से 5% मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी एयर ड्रॉप आएंगे इस फोन के अंदर, तो फर्स्ट लेवल से 10% और सेकंड लेवल से 5% के हमें एयर ड्रॉप भी मिलेंगे। तो हमें 2 लेवल की इनकम यहाँ पर आने वाली है फोन के माध्यम से। तो ये है दोस्तों पहली इनकम, जो कि हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से आएगी, और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसको बाय करके बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पे एसोलेशन वैल्यू लिखा है 3% 2%, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, जो कि वेब की फोन यूजर्स होंगे तो उनको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। अब यहाँ पे लिक्विडिटी अर्थमेटिक पूल मिंटिंग प्रोटोकॉल है, तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत शानदार मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है कि आज ये कॉन्सेप्ट है, हिट है, और कम्युनिटी अगर मूव हो रही है आज इस प्रोजेक्ट की तरफ, तो क्यों हो रही है। तो सबसे पहला दोस्तों टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही लेटेस्ट मोड में काम कर रही है, प्रोडक्ट जो कि बहुत ही हॉट डिमांड है, तीसरा इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो इसके मैकेनिज्म रन कर रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं दोस्तों V33 मॉडल, जो कि हमारे इस टोकन डब्ल्यू की डाउ टोकन को बैलेंसिंग देता है, मजबूती देता है। और यह V33 मॉडल दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, और जितनी भी कंट्रीज हैं सभी के सिस्टम इसी V33 मॉडल को फॉलो करके ही चल रहे हैं। तो ठीक उसी तरह दोस्तों आज हमारा जो सिस्टम है वेब की, इसके अंदर एक ट्रेजरी है, और उस ट्रेजरी के अंदर 2 बॉन्ड है, एक है स्टेबल बॉन्ड और एक है एलपी बॉन्ड, और ये दोनों बॉन्ड बहुत शानदार तरीके से हमारे ट्रेजरी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, और इन्हीं बॉन्ड के माध्यम से इस टोकन की मिंटिंग होती है, यानी कि जो 115.5 मिलियन टोकन है यहाँ पे ये मिंट होंगे लिक्विडिटी बेस पे। तो कैसे मिंट होंगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों मैंने अभी तक आपको एक इनकम के बारे में बताया है, अब यहाँ पे हम आगे कैसे इनकम करेंगे,
क्योंकि एक इनकम तो सिर्फ फोन की थी, अब एक्चुअल में आपको रियल इनकम मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस कॉन्सेप्ट की जो ब्यूटी है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि वेब3 का एक रियल प्रोजेक्ट है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे टोटल कंट्रोल एक यूजर को मिलने वाला है, और यूजर हम सभी हैं। जो भी फर्स्ट टाइम सुन रहा है मेरी बातों को दोस्तों, समझिएगा कि यूजर हम सभी हैं, और ये एक यूजर कंट्रोल प्रोजेक्ट है, क्योंकि वेब3 से बिलोंग करता है ये प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में हम अपनी इच्छा अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो हम चाहें वो। इवन किसी व्यक्ति का बजट $1 का भी है, तो वो $1 से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, और अपनी इच्छा अनुसार 10 लगाएं, 100 लगाएं, 1000 लगाएं, लाख लगाएं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे हमें रिटर्न मिलेगा। यानी कि यहाँ पे कोई पैकेज नहीं होने वाला है किसी व्यक्ति के लिए, और जो भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे कोई 2x 3x 4x नहीं होगा। हम अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम जनरेट करने वाले हैं, चाहे वो कितना भी टाइम्स हो जाए। दूसरा, कोई कैपिंग नहीं होगी, और हमारा फंड कभी लॉकिंग फॉर्म में नहीं होगा। आफ्टर 1 डे आप कभी भी अपना फंड निकाल सकते हैं और अपने यूज में ले सकते हैं, और आप यूज करने के बाद वापस चाहे उसमें रिफिल करना तो वापस से भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों, और हमारे लिए हमारे फंड पे 24/7 कंट्रोल मिलता है, और जब चाहे तब विद इन 30 to 40 सेकेंड्स अपने फंड को निकाल सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट है, इसी वजह से आज ये कॉन्सेप्ट हिट है मार्केट के अंदर, और कम्युनिटी बहुत तेजी के साथ इधर मूव हो रही है। तो आज मैं बात करूं इस कॉन्सेप्ट में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा डब्ल्यू की डाउ टोकन है उसको हमें बाय करना होता है USDT BP20 के साथ, यानी कि ये पेयरिंग जो है उसकी USDT BP20 के साथ है, और बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, और पेनकेक स्वैप यहाँ पे इनबिल्ड है। तो USDT के माध्यम से हमने टोकन को बाय किया और सीधा जाके डैप सिस्टम में स्टेक किया, और प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है कि प्रॉफिट कितना मिलेगा हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो दोस्तों, प्रॉफिट जो यहाँ मिल रहा है वो मिनिमम 0.2% मिलता है 12 घंटे में, मैक्सिमम मिलेगा वो 0.83% मिलेगा हर 12 घंटे में, यानी कि 24 घंटे में 2 साइकिल होंगे हमारे पास। तो हम अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है, चाहे तो हर 12 घंटे में निकाल लें, और अगर हम उस प्रॉफिट को नहीं निकालते हैं तो वो ऑटो कंपाउंड हो जाता है। तो यानी कि ऑटो कंपाउंडिंग हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक पहला तरीका मैंने सीधा बताया कि सीधा USDT से बाय किया टोकन को, डैप सिस्टम में स्टेक किया, प्रॉफिट होना स्टार्ट। दूसरा तरीका है इस टोकन को बाय करने का दोस्तों, वो है बॉन्ड के माध्यम से, लेकिन ये तरीका हमें हमेशा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमें डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन ये डिस्काउंट हमें जब ही दिखाई देगा जब हमारे ट्रेजरी में टोकन्स की कमी होगी और नए टोकन की जरूरत होगी सिस्टम को। तो स्टेबल बॉन्ड में हमें ये डिस्काउंट देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि दिख रहा है 5 दिन का 1 से 5%, 15 दिन में जाए तो 5 से 10%, इस तरह से 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 360 दिन में जाए तो 45% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टेबल बॉन्ड जो हमारा है वो टोकन को मिंटिंग करने का भी काम करेगा, और यहाँ पे टोकन की मिंटिंग होगी। अब जो भी लाइव रेट चल रहा है, अगर हमने USDT से सीधा बाय किया पेनकेक स्वैप से तो लाइव रेट मिल जाएगा, लेकिन ये डिस्काउंट हमें दिखा तो कहीं ना कहीं लाइव रेट से हमें रेट कम मिलेगा। और यहाँ पे मिंटिंग कैसे होगी दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल किसी भी साथी ने $100 की बाइंग करी, तो यहाँ पे 1 USDT के बदले में 1 टोकन मिंट हो जाता है इमीडिएट, जो कि हमारे ट्रेजरी में पहुंच जाता है। आप किसी साथी ने $100 की बाइंग करी तो 100 टोकन मिंट हुए और ट्रेजरी में चले गए। 1000 की बाइंग करी तो 1000 टोकन मिंट हुए। लेकिन क्या उस व्यक्ति को 100 टोकन या 1000 टोकन मिलेंगे? तो नहीं, उसको आफ्टर डिस्काउंट जो भी रेट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो टोकन उसके पास आ जाएंगे, और जिसने वो स्टेक करके प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो दोस्तों, ये हुआ टोकन मिंटिंग का प्रोसेस। और जब भी हमें स्टेबल बॉन्ड में डिस्काउंट मिलेगा तो ये स्थिति होगी हमारी इन्फ्लेशन की स्थिति, यानी कि मार्केट में टोकन की डिमांड बढ़ गई थी लेकिन उसके टोकन की कमी थी और डिमांड ज़्यादा थी, तो यहाँ पे नए टोकन बने स्टेबल बॉन्ड के माध्यम से। अब दोस्तों, दूसरी स्थिति हो सकती है कि जब टोकन का रेट गिर रहा हो
और टोकन ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे एक एलपी बॉन्ड है, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर बॉन्ड है, यहाँ पे भी टोकन मिंट होंगे, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर एलपी बॉन्ड में हमें डिस्काउंट मिलेगा, जो कि सेम इसी तरह से वहाँ पे भी हमें डिस्काउंट दिखाई देगा एलपी बॉन्ड में भी, लेकिन मिंटिंग का फंडामेंटल थोड़ा चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर जो भी बाइंग होगी एलपी बॉन्ड के माध्यम से, तो 50% टोकन जनरेट होंगे और 50% एज ए यूएसडीटी ही लिक्विडिटी को सपोर्ट होगा। $100 की बाइंग हुई तो 50 टोकन बनेंगे जो कि ट्रेजरी में पहुंच जाएंगे और 50 यूएसडीटी फॉर्म में ही लिक्विडिटी को सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेंटेन करने के लिए स्टेबल बॉन्ड एलपी बॉन्ड हैं। तो ये हुआ दोस्तों इसका मिंटिंग का प्रोसेस। यहाँ पे प्रॉफिट क्या जनरेट होने वाला वो मैंने आपको बता दिया कि आज की मैं बात करूं तो एवरेजली अगर मंथली लगा लें हम अपने टोकन की इन्वेस्टमेंट में, आज 20% से प्लस ही आ रहा है, कभी 20, 22, 24, 25, क्योंकि ये फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी फिक्स नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम 0.2 होगा, इससे कभी कम नहीं आएगा 12 घंटे में, और मैक्सिमम 0.83, इससे कभी ज़्यादा नहीं होगा। तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट मिलता है स्लीपिंग मोड में। अब दोस्तों जो अगली इनकम है वो कम्युनिटी इंसेंटिव एग्रीमेंट्स है, और ये एक लीडरशिप इनकम है। तो यहाँ पर एक लीडर का रोल आता है कि अगर जितने ज़्यादा लोगों को हम ये अपॉर्चुनिटी शेयर करें तो यहाँ पे हमारी टीम बनेगी, और जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी वो उतनी ही बड़ी इनकम आज इस सिस्टम से ले पाएगा। और ऐसे बहुत से लीडर हैं जो आज बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं अपनी लीडरशिप के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने आज बहुत बड़ी टीम अपनी जनरेट कर ली है। क्योंकि सिस्टम जब इतना शानदार है, हर एक इन्वेस्टर के कंट्रोल में है उनका फंड, कि कभी भी उनका फंड लॉक नहीं है, तो इन्वेस्टर को भी अच्छा लगता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मेरे साथ कोई अर्जेंसी आई तो मैं उस फंड को इमीडिएट निकाल लूंगा और यूज कर लूंगा, और आफ्टर यूज केस मेरे पे वापस फंड आता है तो मैं वापस भी उसमें डाल सकता हूं। तो ये सब जब एक फ्रीडम महसूस होती है एक इन्वेस्टर को दोस्तों, तो एक लीडर के लिए बहुत बेटर सिचुएशन होती है, क्योंकि उनकी टीम बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रही होती है। तो यहाँ पे एक लीडर के पास 15 लेवल से इनकम आने वाली है दोस्तों। तो इस 15 लेवल की इनकम को लेने के लिए कुछ काम करने होते हैं, यानी कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो वो क्या है कि पहले लेवल की इनकम लेने के लिए एक लीडर की सेल्फ आईडी $200 की होनी जरूरी है, और एक डायरेक्ट होना चाहिए। जो भी हम डायरेक्ट करेंगे वो मिनिमम $100 की वैल्यू से होना चाहिए, तभी वो हमारा वैलिड नोट कहलाता है। दूसरे लेवल की इनकम को लेने के लिए $400 की सेल्फ आईडी और 2 डायरेक्ट। तीसरे लेवल की इनकम को लेने के लिए $600 और 3 डायरेक्ट। चौथे के लिए 800 और 4 डायरेक्ट। तो यहाँ पर हर एक लेवल पे $200 सेल्फ में प्लस करते जाना है, और 15 लेवल तक पहुंचते पहुंचते एक लीडर की सेल्फ आईडी $3000 की हो जाती है, और नंबर ऑफ डायरेक्ट होते हैं 15। तो यहाँ पे 15 लेवल क्वालिफाई हो जाते हैं। अब लेवल क्वालिफाई होने के बाद इनकम क्या जनरेट होगी दोस्तों, यहाँ पे पहले लेवल से लेकर के 9 लेवल तक 10% का 10% की इनकम आती है फ्लैट। 1 से लेके 9 तक कहीं पर भी हमारी टीम है तो 10% की इनकम जनरेट होकर आती है, आरओई का आरओई, यानी उनकी इनकम का इनकम। 10वें लेवल पे 5%, और 11 से लेकर के 15 तक 1-1% की इनकम आती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लेवल इनकम जनरेट होती है, जो कि आज बहुत बड़े लेवल पे लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, और ये बहुत बड़ी इनकम बनती है। क्योंकि यहाँ पे हम अगर 2, 4, 10 की मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, तो सोच के देखिए 9 लेवल तक ही हमारी बहुत बड़ी टीम बन जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट कॉलम देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट स्कोर। तो ये क्या है, तो सिस्टम कहता है कि हम यहाँ पर जो भी प्रॉफिट जनरेट करेंगे इस सिस्टम के माध्यम से, वहां पर 15% का आपको प्रॉफिट टैक्स पे करना होगा। अब ये 15% का प्रॉफिट टैक्स क्यों? सिस्टम तो फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, कोई मालिक नहीं, कोई एडमिन नहीं, तो ये 15% का डिडक्शन क्यों? तो दोस्तों ये 15% का जो डिडक्शन है ये भी हमारी कम्युनिटी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि सिस्टम तो फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। तो इस 15% का क्या यूज केस है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन सिस्टम कहता है कि आप चाहें तो ये 15% का जो प्रॉफिट टैक्स है उसको आप कम कर सकते हैं, या चाहे तो बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, $200 की सेल्फ आईडी और एक डायरेक्ट जैसे ही हम करेंगे, सिस्टम हमें 10 क्रेडिट स्कोर दे देता है हमारी आईडी के ऊपर, और इसका मतलब होगा कि 1% का टैक्स हमारा कम हो चुका है। जैसे ही हमारी सेल्फ आईडी $400 पे जाती है, 2 डायरेक्ट करते हैं, 2% का टैक्स कम। $600 3 डायरेक्ट, 3% का टैक्स कम। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 15 डायरेक्ट
और $3000 की सेल्फ आईडी पे ये जो हमारा 15% का टैक्स कट रहा था वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी कि जो भी प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे सिस्टम के माध्यम से वो कंप्लीटली हमें मिलने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों एक नोट लिखा हुआ है, द ब्लॉक रिवॉर्ड इज द बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ 30 to 100%। तो ये हमारी लेवल इनकम पे एप्लीकेबल है, क्योंकि सिस्टम फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, 137 से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही डिसाइड करता है अपने ट्रेजरी बेसिस पे कि अभी मुझे कितनी इनकम आगे देनी है किस लेवल पे। तो यहाँ पे अगर फ्लक्चुएशन होती है लेवल इनकम में तो 30 और 100 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि 10% की बजाय 3% हो सकती है, और कंप्लीट ही होगी तो 10%, यानी कि बीच में भी कुछ भी हो सकती है। तो ये फ्लक्चुएशन होती है यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन की बात करें दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो वही है कि हम सिस्टम में किसी को भी रेफर करें तो मिनिमम $100 की वैल्यू से करें, तभी वो हमारा वैलिड नोट कहलाएगा, तभी उसके हमें बेनिफिट मिल पाएंगे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी के पास अगर $100 नहीं है तो वो सिस्टम में हम उसको रेफर ना करें। सिस्टम में हम हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है इनकम करने का। तो यहाँ पे अगर हमने किसी को $90 $80 से भी कर दिया तो उस व्यक्ति को वो सभी बेनिफिट मिलेंगे जो हमें मिल रहे हैं, बशर्ते हमें उस व्यक्ति से जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक उसकी आईडी $100 की कंप्लीट नहीं हो जाती, जो कि एक ना एक दिन ऑटो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है। $100 की आईडी उसकी कंप्लीट हो जाएगी ऑटो कंपाउंडिंग के माध्यम से, और वो व्यक्ति उस दिन हमारे लिए एक इनकम का पार्ट बन जाएगा, वो हमारे लिए वैलिड नोट हो जाएगा। जो सेकंड पॉइंट है जो मैंने आपको बता चुका हूँ, लेवल इनकम पे एप्लीकेबल है। और थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 15% का प्रॉफिट टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसका क्या यूज केस है। तो 20% दोस्तों उसका हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए यूज होता है, 40% डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्न हो जाता है, और 40% रिवॉर्ड कम्युनिटी और 40% हमारे रिवॉर्ड के लिए यूज होता है। और इस 40% का बेनिफिट हम ले सकते हैं वो भी वीकली बेसिस पे। तो ऐसे बहुत से लीडर हैं जो आज वीकली बेसिस पे इस 40% में से अपनी हिस्सेदारी को बुक करते हैं। तो ये 40% की हिस्सेदारी हम कैसे बुक कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम $3000 की सेल्फ आईडी करते हैं और 15 डाइट कर लेते हैं तो सिस्टम हमें 2 बेनिफिट पहले ही दे चुका है कि 15 लेवल की इनकम लेने के लिए हम हकदार बन चुके हैं। दूसरा, हमारा प्रॉफिट टैक्स बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो ये दोनों बेनिफिट मिल गए। अब 15 डायरेक्ट के ऊपर अगर किसी सिंगल व्यक्ति को भी हम सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं यानी कि 16वां डायरेक्ट, तो हम इस 40% में से अपना हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उस एक डायरेक्ट का भी, और जो कि हमें वीकली बेसिस पे मिलेगा। अब 15 के बाद जितने ज्यादा हम डाइट करेंगे उतना ही बड़ा हिस्सा हमें मिलेगा इस 40% से, जो कि आज लीडर्स $5,000 भी वीकली ले रहे हैं अपने नंबर ऑफ डाइट से ऊपर। किसी ने 50 डाइट एक्स्ट्रा कर रखे हैं, किसी ने 100, किसी ने 150। आप 10-5 करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे वीकली कितनी इनकम यहाँ से आने वाली है। तो इस वीकली इनकम को सेट करना हमारे ऊपर डिपेंड है, वो जब हम 15 से आगे डायरेक्ट करेंगे। अब दोस्तों ये कम्युनिटी एक्टिविटी असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स एक बहुत शानदार इनकम जिसको मैं रैंक एंड रिवॉर्ड इनकम कहता हूं। और ये जो रैंक एंड रिवॉर्ड इनकम है दोस्तों बहुत शानदार है, क्योंकि रैंक को हमें एक बार अचीव करना है, लेकिन रिवॉर्ड हमें यहाँ पे हर 12 घंटे में डेली मंथ बाय मंथ मिलते ही रहना है। क्योंकि दोस्तों हमें डेली काम करना पड़ता है, मंथली काम करना पड़ता है, सालों साल काम करना पड़ता है किसी भी इनकम को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैजिकल है कि एक बार अगर हम इस रैंक को अचीव कर लें तो हमारी इनकम कंटिन्यू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों पैसिव इनकम की परिभाषा ये इनकम दिखाती है कि एक बार मेहनत करिए उसके बाद आप पैसिव इनकम को एंजॉय करिए। तो दोस्तों यहाँ पे 9 रैंक होने वाली हमारे पास A1 से लेके A9 तक, और इसको कैसे क्वालिफाई किया जाए और क्वालिफाई करने के बाद क्या हमें प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे जितने भी लोगों को दोस्तों हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में वो हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर कहलाते हैं, लेकिन सिस्टम उनको एज ए लैग काउंट करता है और वो देखता है कि किस लैग में आपका सबसे ज्यादा काम हो रहा है। तो सिस्टम उसको बिग लैग या पावर लैग, बाकी जितने भी आपके डायरेक्ट हैं उन सबको एक साथ मर्ज करेगा और उनको स्मॉल लैग में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि हमारे कंप्लीट बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा और 2 लैग से हम सभी की सभी रैंक क्वालिफाई कर पाएंगे। तो A1 की जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों उसके लिए सेल्फ आईडी $300 की होनी जरूरी है, और बड़ी लैग से जो बिजनेस होगा वो $20,000 का होना चाहिए, और सभी लैग को मर्ज करके यानी कि स्मॉल लैग से 5,000 का। तो यहाँ पे A1 क्वालिफाई कर पाएंगे हम।
पहले हम सिर्फ क्वालिफिकेशन जानेंगे। A2 की जो क्वालिफिकेशन है वो है $1000 की सेल्फ आईडी, $60,000 का बिजनेस चाहिए बड़ी लेग से और 15,000 का छोटी लेग से, और यहाँ पे हम क्वालिफाई करेंगे A2 रैंक। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो बिजनेस है हमारा जुड़ते हुए क्रम में है, ध्यान रखिएगा जो साथी पहली बार मुझे सुन रहे हैं कि ये नेक्स्ट नहीं है, जुड़ते हुए क्रम में है। $300 की मेरी सेल्फ आईडी थी, अगर मैं $700 और डाल दूं तो मेरा 1000 कंप्लीट हो जाएगा। $20,000 का बिजनेस मेरा हो चुका था, नया बिजनेस में 40,000 कर देता हूं, मेरा 60,000 हो जाता है बिग लेग से। स्मॉल लेग में मेरा 5,000 था, 10,000 में नया बिजनेस कर देता हूं, 15,000 हो जाएगा और मैं A2 यहाँ पे कंप्लीट कर जाऊंगा। A3 की बात करूं तो $2,500 की सेल्फ आईडी होनी चाहिए यहाँ पे एक लीडर के लिए, और $1.5 लाख का बिजनेस होना बिग लेग से और 50,000 का छोटी लेग से, और यहाँ पे A3 रैंक क्वालिफाई होती है। A4 की बात करूं तो $4,000 की सेल्फ आईडी, $4 लाख का बिजनेस चाहिए बड़ी लेग से और 1 लाख का छोटी लेग से। A5 की जो क्वालिफिकेशन है वो $6,000 की सेल्फ आईडी, $10 लाख का बिजनेस चाहिए बड़ी लेग से और $2.5 लाख का बिजनेस चाहिए छोटी लेग से। A6 की क्वालिफिकेशन है दोस्तों $8,000 की सेल्फ आईडी, $25 लाख का बिजनेस चाहिए बड़ी लेग से और 5 लाख का छोटी लेग से। A7 की क्वालिफिकेशन है $10,000 की सेल्फ आईडी, $50 लाख का बिजनेस चाहिए बड़ी लेग से और 15 लाख का छोटी लेग से, और यहाँ पे हम क्वालिफाई करेंगे A7 रैंक। और A8 $12,000 की सेल्फ आईडी जरूरी है लीडर्स के लिए अपनी सेल्फ, और $1 करोड़ का बिजनेस चाहिए बड़ी लेग से और 30 लाख का बिजनेस चाहिए छोटी लेग से, $30 लाख का। A9 जो कि टॉप रैंक है दोस्तों, यहाँ पे चाहिए एक लीडर की सेल्फ आईडी $15,000 की और $3 करोड़ का बिजनेस चाहिए बड़ी लेग से और $1 करोड़ का बिजनेस चाहिए स्मॉल लेग यानी कि छोटी लेग से। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम सभी की सभी 9 रैंक क्वालिफाई कर पाएंगे। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बताया, और आज सिस्टम को 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और सिस्टम में ये सभी रैंक्स क्वालिफाई हो चुकी हैं, और ये सभी की सभी रैंक फर्स्ट 3 मंथ्स में ही कंप्लीट हो चुकी थी। आज मल्टीपल लीडर्स सिर्फ अपना नाम दर्ज करते जा रहे हैं इन रैंक्स के ऊपर। तो आज इस सिस्टम ने हजारों लाखों लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। आज हजारों लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो कभी सपना देखते थे कि मैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख रुपए अपने जीवन में अर्न करूं, और भी पैसिव इनकम के फॉर्म में। दोस्तों वो सपना भी उनका साकार हुआ ड्यू टू दिस इनकम। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें दोस्तों, तो देखिए A1 की क्वालिफिकेशन पे हमें जो इनकम मिलती है वो 1 से 15% मिलती है। अब 1 से 15% कहाँ से मिलती है, तो मैंने आपको बताया था 2 लैग होंगी हमारी, एक बड़ी लैग एक छोटी लैग। छोटी लैग यानी कि जो सभी लैग को मर्ज करके बनी थी, उसमें जितना भी वॉल्यूम जनरेट होगा उसका 1 से 15% यहाँ पे हमें इनकम के तौर पे मिलता है, और वो भी हर 12 घंटे में मिलता है, 24 घंटे में 2 बार मिलता है। अब मैं बात करूं दोस्तों ये इनकम कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जिस लीडर ने 2 लोगों को रेफर किया है, क्योंकि मिनिमम 2 तो रेफरल चाहिए इस रैंक को लेने के लिए। अब किसी लीडर ने 5, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20, किसी ने 25, तो उस 25 में से एक बड़ी बाकी 24 छोटी, किसी ने 15 की है तो एक बड़ी बाकी 14 की 14 छोटी। तो जितने ज़्यादा स्पॉन्सरिंग की होगी किसी ने, उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा जनरेट होगा। तो दोस्तों ये हमारे डायरेक्ट पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे इनकम क्या हो सकती है। तो फिर भी यहाँ पे A1 अचीवर जो होता है दोस्तों, जो प्रॉपरली सभी कुछ फिलिंग करके चलता है, तो अप्रोक्स 10 से $20 की इनकम उसकी डेली बेसिस पे होने लग जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे कम्युनिटी सेल फोन सेल्स, यानी कि जो हमारा एक बहुत ही हॉट और यूनिक प्रोडक्ट है मोबाइल फोन, वो कम्युनिटी में सेल होगा तो 5% का कमीशन वहां से भी जनरेट होगा। उसके अंदर जो भी एयर ड्रॉप रिलीज होंगे वहां से भी 5% आने वाला है, और 1% सेल फोन एसोलेशन वैल्यू में इजाफा होगा, यानी कि जो वेब की फोन यूजर होगा उसमें जो स्टेकिंग करेंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था 3% 2% है एसोलेशन वैल्यू, तो उसमें 1% का इजाफा होगा। तो ये दोस्तों बेनिफिट मिलते हैं, और ये जो मैंने 3 चीजें बाद में बताई हैं 5% 1%, ये सभी रैंक्स पे लगभग इक्वल मिलते हैं, बट इनकम यहाँ पे डिफरेंट मिलती है दोस्तों। अब बात करते हैं A2 पे, तो A2 की कैलकुलेशन देखिए, आप स्लाइड पे नजर बनाए रखिएगा, कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो 16 से 25% यानी कि परसेंटेज लेवल बढ़ता है, और यहाँ पर भी कैलकुलेशन हमारी स्मॉल लैग से ही आने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे लगभग 50 से $100 की इनकम पर डे स्टार्ट हो जाती है, और इसको अगर कंपाउंडिंग मोड में निकाला जाए दोस्तों तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट मिलता है। और A3 की बात करूं दोस्तों तो 26 से 35% की कैलकुलेशन है, और यहाँ पे डेली लगभग 200, 250, 300
अप्रोक्स इनकम डेली आने लग जाती है, क्योंकि डिपेंड करता है वही चीज़ दोस्तों कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिस्टम में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत शानदार इनकम मिलती है। और A4 की बात करूं तो यहाँ पे 36 से 45% की कैलकुलेशन निकलती है हमारी स्मॉल लैग से, और इनकम दोस्तों यहाँ पे लगभग $500 प्लस हो जाती है पर डे की। और $500 पर डे का मतलब है दोस्तों लगभग 15 से 20 लाख रुपए का पे आउट मंथ बेसिस का इजीली यहाँ पे आज जो A4 अचीवर हैं वो ले रहे हैं दोस्तों। A5 की बात करूं तो कैलकुलेशन देखिए आप 46 से 55% की निकलती है हमारे स्मॉल लैग की, और इनकम हो जाती है यहाँ पे दोस्तों 30 लाख से भी प्लस। आज किसी लीडर की 30 लाख है, किसी की 35, किसी की 40। अब उस लीडर ने जैसी मेहनत करी है दोस्तों वो इनकम ले रहे हैं। तो टेंटेटिव आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो सकता है। A6 की बात करूं तो यहाँ पे कैलकुलेशन 56 से 65% की है, और दोस्तों इनकम जो हो यहाँ पे होती है 50 लैक्स के ऊपर पहुंच जाती है मंथ बेसिस पे। किसी की 50 है, 60, किसी की 70, क्योंकि बात वही जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बोला। तो ये आपको मैं टेंटेटिव फिगर दे रहा हूँ। आगे चलें दोस्तों A7 की तरफ, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ रही है 66 से 75% की हमारी स्मॉल लेग की, और इनकम दोस्तों हमारा यहाँ पे जो हो रहा होता है लगभग 1 करोड़ से ऊपर मंथ बेसिस पे। 1 करोड़ रुपया महीने की इनकम, सिर्फ पैसिव इनकम कि एक बार हमने इस रैंक को अचीव कर लिया, तो इस इनकम को हम डेली डेली और मंथ में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो फिगर मैं आपको दे रहा हूँ ये कंप्लीट हो जाएगा। A8 पे चलें तो दोस्तों यहाँ पे 76 से 85% की कैलकुलेशन आती है, और इनकम यहाँ पे 2 करोड़ से ऊपर सिर्फ आपको ये पैसिव इनकम, ये रैंक एंड रिवॉर्ड इनकम आपको मिल रहा है। जो भी आज A8 अचीवर हैं आज वो इस इनकम को फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं। अब दोस्तों लास्ट और टॉप रैंक जो कि A9 है, एक ड्रीम है आज इस कॉन्सेप्ट में जो भी लीडर्स काम कर रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी A9 बनूं, क्योंकि टॉप पे जाना सभी को अच्छा लगता है, और टॉप पे आने के बाद वो इनकम भी यहाँ मिलेगी जो कि शायद आज लोग जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते कि वो इनकम यहाँ पे उनको मंथ बेसिस पे मिल सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन देखिए 86 से 100% है, और यहाँ पे डेली बेसिस पे दोस्तों लगभग 25 से 30 लाख रुपए की इनकम डेली हो रही होती है। और मैं मंथ की बात करूँ दोस्तों तो जो एक रफली जो टेंटेटिव आइडिया है दोस्तों 8 से 10 करोड़ रुपए का पे आउट पहुंच जाता है इस रैंक पे, जो कि आज मल्टीपल लीडर्स A9 रैंक पे पहुंच चुके हैं और इस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों रैंक इनकम। इसलिए आज जो भी आज लीडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करते हैं, किसी भी तरह एक बार मेहनत कर ली जाए, इन रैंक्स को अचीव कर लिया जाए, उसके बाद तो हम सब सो भी रहे होंगे तो ये इनकम हमें आ रही होगी दोस्तों। यही है पावर इस इनकम की। अब दोस्तों ट्रेडिंग टरबाइन रूल्स एक बहुत शानदार मैकेनिज्म है जो कि प्रूवन है। ये हमारे टोकन यानी W की डाउ टोकन को पंप और डंप होने से बचाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, और ये प्रूवन है। इसी वजह से आज जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई डर नहीं है इस सिस्टम के अंदर कि वो किसी भी तरह का लॉस भी कर सकते हैं। और ये दोस्तों इसी वजह से है क्योंकि ट्रेडिंग टरबाइन रूल्स बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और ये पहले से प्रूवन है, ऐसा नहीं कि पहली बार इसको यूज किया जा रहा है। ट्रेडिंग स्लिपेज रूल्स यानी कि जब इस टोकन को हम बाय करेंगे USDT BP20 के माध्यम से तो हमें कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन जब हम यहाँ पे इनकम करते हैं दोस्तों, क्योंकि जितनी भी इनकम हमें आती हैं सब वो टोकन फॉर्म में ही आती हैं। अब उस टोकन को जब हम USDT में कन्वर्ट करते हैं यानी कि USDT BP20 में, तो 3% का स्लिपेज चार्ज यहाँ पे लगता है। रूल्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्ट, यहाँ पे एक्स्ट्रा टोकन्स की बर्निंग है वो भी हर 12 घंटे में, जो कि मिनिमम 0.5% होगी और मैक्सिमम 5% की होगी हर 12 घंटे में। तो जो भी एक्स्ट्रा टोकन्स है वो बर्न होंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों सोचिए यहाँ पे 115.5 मिलियन 11.5 करोड़ टोकन ही है जो कि मिंट होके मार्केट में आने हैं, लेकिन बर्निंग कंटिन्यू चालू है। यानी कि 11.5 करोड़ टोकन में से भी बहुत सारे टोकन बर्न हो जाएंगे। और आज से ही जो व्यक्ति फोकस कर लेगा कि मुझे मैक्सिमम टोकन्स अपने होल्ड में रखने हैं, आने वाले समय में दोस्तों इतिहास वो व्यक्ति लिखेगा वेबकी के अंदर। क्योंकि जो व्यक्ति स्टार्टिंग में BNB और बिटकॉइन को कहीं ना कहीं भाप गए थे दोस्तों, आज वो किंग है पूरे वर्ल्ड के अंदर। कोई बताएगा नहीं कि मेरे पास कितने BTC हैं, कितने BNB हैं, लेकिन दोस्तों वो अंदर अंदर वो स्ट्रांगनेस फील करता है अपने अंदर। क्योंकि आज मैंने खुद कई लोगों के मुंह से सुना मेरे पास इतने BTC हैं, इतने BNB हैं,
क्योंकि इसको देख पाना तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, लेकिन आज ये अपने वॉल्ट में हम सिर्फ रख लें इस टोकन को, तो आने वाले समय में वाकई ही किंग वो व्यक्ति बन सकता है। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट वेबकी का, जो मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की, आप तक पहुंचाने की, और जितने भी साथी मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे तो कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया जरूर लगा होगा, आपको एक फीलिंग जरूर आई होगी कि ये प्रोजेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आखिर आने वाले समय में ये इतिहास क्यों लिखने वाला है। वजह दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी, इसका प्रोडक्ट और इसका इनकम प्लान। तो थैंक यू सो मच। अब मैं फिर से बुलाना चाहूंगा हमारे होस्ट रवि जी को। रवि जी, ओवर टू यू।